একটু অডিয়েন্সে লাইট very good. So already I shared that today we have one of the most knowledgeable and most experienced person in this industry, and I learned lot of things from him last 15 years. এবং I believe that আপনাদের মধ্যে অনেকেই ওনার ভিডিও হয়তো অলরেডি দেখেছেন। তো মোস্ট আই এম ভেরি এক্সাইটেড যে আজকে আমরা তাকে পেয়েছি আমাদের ইনভেস্টর অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামে। তো আমি আমাদের এই টিমের একজন নিউলি জয়েন তমেকা মুখার্জিকে আমি ইনভাইট করছি স্যারকে, মিস্টার কিষান শর্মাকে ওয়েলকাম করার জন্য। তো তমেকা, So, good afternoon everyone. আমি কারো সাউন্ড পাচ্ছি না। প্লিজ গুড আফটারনুন। থ্যাংক ইউ। আমাদের একটা সুন্দর কুইজ হলো, হ্যাঁ, আর আমরা আস্তে আস্তে আমাদের প্রোগ্রামটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সবার সাথে আপনাদেরও অনেক পরিশ্রম আছে এবং আপনাদের জন্য আমরা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছি। সো উই উইল কন্টিনিউ উইথ দ্য নেক্সট প্রোগ্রাম। I am Tomika Mukherjee, and it is an honor for every one of us joining here to welcome a person who is a standing example of an esteemed investment coach, a vibrant keynote orator, and also the co-founder of OSAT Knowledge Private Limited. With over 3 decades of experience in the mutual fund industry, he has not only excelled in areas such as research, portfolio management, and institutional business, but has also devoted 15 years to the investors' education. Through over 3400 investment seminars across 210 cities in India and abroad, he has been instrumental in spreading financial literacy. His groundbreaking work in behavioral finance has brought personal finance education to life, especially through his vernacular YouTube series, Bachat, Nivesh or Aap, which has reached over 1 million viewers. Driven by a deep commitment to helping others achieve financial freedom, he believes that financial empowerment is the key to true happiness. We are thrilled to have him with us today and look forward to the insights he will share. Ladies and gentlemen, please join me in welcome none other than Mr. Kishan Sharma ji with a big round of applause. He is not only a speaker, we can't say him a speaker. He is one of the knowledgeable person from where we can learn lots of things. So please keep watching and आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा हम लोगों को. Hope you will get all the knowledge and new things from him. Thank you. Please start. Thank you. Thank you, Tomika, for these wonderful words, and thank you, Ashish ji, for this opportunity. Friends, please accept my apologies. I'll not be able to speak in Bangla. I'll speak in English and Hindi. Chalega? Right? Most of you follow Hindi and English also. Chalega Hindi? Super, बहुत बढ़िया. Okay, how many of you heard a person's name called Eliud Kipchoge? Eliud Kipchoge. One. Okay. Two of you know him. और कोई नहीं जानता उनको? Really, कोई नहीं जानता है? How many of you heard the name Usain Bolt? सब जानते हैं? क्यों? Why? आप उसेन बोल्ट को सब जानते हैं, एलियड किपचोगे को कोई नहीं जानता है, 2 लोग जानते हैं, बताइए। जानते हैं क्यों? कि वो मैराथन
आप मैराथन क्यों नहीं देखते हैं बताएं? आप बोरिंग 2 hours and the distance between the runners up and the first person who comes first is miles, isn't it? Like 100 meters within 9 seconds you get the result. Go to finish. Instant results. We want everything instant. कैसा बनता है instant? And this is what बहुत सिंपल सी बात आपसे कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ईमानदारी से जवाब दीजिए। I'm not here to do a monologue here or a dialogue. हम बात करेंगे, आप तैयार हैं? वादा करेंगे आप ईमानदारी से, मुश्किल काम है ईमानदारी, कोशिश कीजिएगा कि आप ईमानदारी से, एक सवाल पूछूंगा मुझे समझ में आ जाएगा, ईमानदारी से बात। Mic is, yeah, I also feel that mic is not, and you can do something with the mic. Hello. Raise the voice sound or what? What can? Acha, that's super. Thank you. Okay, but it will trouble me now. Restrict my movement. Okay, I remain here. So हम बात करेंगे और ईमानदारी से बात करेंगे. आप तैयार हैं? So here are two options. Option number 1. How many of you want to make more money? कितने लोग ज्यादा कमाना चाहते हैं? अभी तो ऑप्शन दूसरा सुना ही नहीं है आपने. How to choose one, how to two. See, हम कितने जल्दी में रहते हैं ना. Everybody is in hurry and nobody reaches on time. कितना अजीब सा बात है, दुनिया अजीब सी है ना. सब भाग रहे हैं देखिए और ऑफिस में सब लेट पहुंच रहे हैं. We don't know where we have to reach. We have to go. दो ऑप्शन है, दोबारा बोलता हूँ. फर्स्ट ऑप्शन, आप में से कितने लोग ज्यादा कमाना चाहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन. द सेकंड ऑप्शन इज, आप में से कितने लोग दूसरे से ज्यादा कमाना चाहते हैं? प्लीज बी ऑनेस्ट विथ मी. आउट ऑफ 2. Is it number 1? Yes. Are you honest? Yes. आप अगर क्लास में फर्स्ट आएंगे तो कैसा लगेगा? तो फिर नंबर 1 कैसे हुआ? What is being first in class? What is there in our mind always? Very few of us want to try. Each one of us want to survive. And this world is a jungle. We are Homo sapiens. We are in this world for last 3 lakh years. We learned agriculture just 8,000 years ago. 2,92,000 years we have spent our lives in jungles. And jungle, every moment you have to survive. And how you survive in jungle? कभी आपने सोचा आप जंगल में कैसे बचते हैं? एक हिरण जब सुबह उठता है ना, तो अपने आप से वादा करता है कि मुझे शेर से तेज भागना है, नहीं तो शेर मुझे मार देगा. और शेर जब सुबह उठता है तो अपने आप से वादा करता है मुझे हिरण से तेज भागना है, नहीं तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, मैं भूख से मर जाऊंगा. You survive when you outperform others. You don't want to make money, friends. You are at peace when you make money more than others. क्यों? क्योंकि अगर खतरा आएगा तो किस पे पहले आएगा? जिसके पास पैसा आपसे कम है. And that is something we have to understand. What is the psychology of investing? Investing पैसा कमाना नहीं है दोस्तों. Investing पैसा बनाना है. So what is the problem with investing? Why most of us fail in investing? How many of you have read the news that SEBI report which has come some time back? Most of the investors in India are successful investors or they fail in investing? क्या सुना आपने? SEBI क्या कहती है? What is the percentage of people who fail in investing? 93%. ये स्टॉक मार्केट पैसा बनाने का जगह है कि कैसीनो है? It's a gambling. क्यों गैम्बलिंग है? क्योंकि most of us are losing rather than making money. तो प्रॉब्लम क्या है? उस प्रॉब्लम को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. Why 100 meters? Why we don't respect marathon? And please tell me, your investing is 100 meters or marathon? It's a marathon. It's a journey of 30, 40, 50 years. तो क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम कहाँ है? उस प्रॉब्लम को अगर आपने नहीं समझा, इंडिया में कितना ही पैसा बने, आपका पैसा नहीं बनेगा. Any idea इंडिया में कितना पैसा बनेगा? Any idea what IMF says?
There are only two C's you have to understand. I spent 30 years in investing. First 10 years made no money. Flop. Made no money. 1992, 2002. कुछ भी पैसा मैंने नहीं बनाया. Wasted 10 years. Next 10 years, I made some money. I learned something which is very crucial for a successful investing. And the last 10 years, I learned the secret of wealth creation. There's only one secret of wealth creation, only one, and that's called compounding. If you don't understand compounding, you will not be able to understand investing. और compounding से एक चीज से आती है, that is called consistency. What is consistency? Understand this. मैं आपको जंगल लेके चलता हूँ, right? ध्यान से समझिएगा जो मैं आपसे बात कहने जा रहा हूँ. बंगाली, मैं जहाँ भी इंडिया में घूमने जाता हूँ ना, बंगाली जरूर घूमने जाते हैं. इवन राजस्थान में द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान, जैसलमेर फोर्ट है ना, सोनार, उसका नाम ही आपने दिया है, सोनार किला, राइट? वहां पर भी आप जाते हैं, तो आप हर जगह जाते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू गो टू जंगल्स? जंगल सफारी करते हैं आप? करते हैं ना? किस जानवर को आप ज्यादा देखते हैं बताइए? किसका फोटो लेके आते हैं? शेर का. क्यों? क्यों? द किंग ऑफ जंगल, द किंग ऑफ बीस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. हमें क्लास 1 से क्या सिखाते हैं? सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, सबसे गहरा समुद्र कौन सा है, सबसे लंबी नदी कौन सी है. अरे यही तो हम सीखते हैं ना. तो सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है? शेर. But you know the problem with the lion? It cannot hunt easily. It cannot hunt alone. They hunt in tribes. 5-7 lions together they hunt. And even then the success rate is just 30%. 7-8 lions together they hunt and the success rate is only 30%. Leopard success rate is 40%. Cheetah success rate is just 50%. चीता भगवान के पास जाता है और भगवान को कहता है कि मैं इतना तेज भागूं कि मेरे से तेज कोई भाग नहीं सकता है, कोई हिरण मेरे से बचेगा नहीं. But when you run fast, what happens? What happens when you sprint? What happens? You spend energy, a lot of energy you spend, and your temperature of the body goes up. Cheetah cannot run more than 2 minutes. अगर वो 2 मिनट से ज्यादा उस रफ्तार पे दौड़ेगा ना, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, मर जाएगा. उसको रुकना पड़ता है. He fails. Half the times he fails. This animal called wild dog. It never fails in hunting. Never fails in hunting. Success rate is usually more than 95%. Any idea what is the secret of hunting wild dog success in hunting? They are better hunters than lions. They are better hunters than tigers. They are better hunters than leopards. They are better hunters than cheetahs. Why? And the weight of a wild dog is 14 kg max. The speed of the dog is 35 km max. 35 km. Antelopes run 80 kilometers. हिरण जब भागता है तो 80 किलोमीटर से भागता है. तो ये कुत्ता कैसे पकड़ता है? सोचिए क्या करता है. Consistency and perseverance. Consistency and strategy. Persistence is our power and speed. उसको स्पीड नहीं चाहिए. एंड्योरेंस. वो जब भगवान के पास गया, भगवान से बोलता है, भगवान मुझे ना ऐसा ताकत दे दो कि मैं 2 घंटे तक दौड़ सकूं. एलियड किपचोगे, मैराथन रनर. इट्स ए मैराथन रनर. उसका स्पीड हिरण का स्पीड से आधा है. लेकिन जब हिरण के पीछे पड़ता है तो हिरण डर के भागता है. 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट थक के गिर जाता है. कुत्ता पकड़ लेता है. सो व्हाट यू वांट इन इन्वेस्टिंग? हाई रिटर्न्स और सक्सेस. What do you want? When you leave in house today to go back to your home, ईमानदार से जवाब दीजिएगा. आप सभी कार से आए होंगे, बाइक से आए होंगे, किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए होंगे. जब आप यहाँ से वापस घर जाएंगे तो स्पीड को टारगेट करेंगे कि घर पहुंचने को टारगेट करेंगे? What is the target? To reach your home or speed? What's the target? To reach home. और जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो पहला सवाल क्या पूछते हैं? रिटर्न क्या आएगा? Which is not in your control. The biggest problem with investing world is रिटर्न क्या आएगा. अगर आपने ये सवाल पूछ लिया ना रिटर्न क्या आएगा, तो आपका पैसा नहीं बनेगा. और अगर कहीं ज्यादा रिटर्न बन रहा है तो वो चीता जैसा है, 1-2 साल बनेगा, उसके बाद नहीं बनेगा. आप साल में पैसे को 4 गुना करना चाहते हैं कि 20 साल में 200 गुना करना चाहते हैं? चॉइस ऑफ लॉस. और पैसा 4 गुना करने से जिंदगी नहीं बदलेगी दोस्तों. आपका 10 लाख रुपया बढ़ के 40 लाख हो गया, जिंदगी नहीं बदलेगी. लेकिन आपका 10 लाख बढ़ के 4 करोड़ हो गया, 40 करोड़ हो गया, तभी जिंदगी बदलेगी. So what is the first step of investing? First step of investing is targeting corpus.
targeting corpus. And if your age of less than 40 years in India today, in this India which is going at the fastest rate in the world today, आप जानते हैं आपका corpus target कितना होना चाहिए? I'm not joking. 100 crores. Each one of you in this hall can make 100 crores in your life just by investing regularly, doing nothing else. Yes, आसानी से, and nobody will fail. I guarantee you, nobody will fail. But what you have to do for that? Just invest regularly. Whatever happens in the market, don't react to markets. Tell to the markets, whatever happens in the market, I don't bother. मैं वो करूँगा जो मुझे करना है. और वो क्या करना है, वो हम थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं. So the first thing which comes in investing is psychology and behavior, not the markets. Markets is same for everyone. Economy is same for everyone. Each one of us earn different returns. Okay, यहाँ चाय बहुत पीते हैं, बंगाल में चाय को बहुत पसंद करते हैं ना. आप सब लोगों को मैं एक ही कंटेनर से मिल्क देता हूँ, दूध देता हूँ, आपको एक ही कंटेनर से पानी देता हूँ, एक ही कंटेनर से टी डस्ट देता हूँ, टी लीव्स देता हूँ, एक ही कंटेनर से आपको मैं मिल्क देता हूँ, पानी देता हूँ, शक्कर देता हूँ और टी डस्ट देता हूँ, और आपसे बोलता हूँ चाय बनाइए. अब आप सब लोग चाय बनाएंगे और आपको सबको एक ही क्वांटिटी देता हूँ और आप सब चाय बनाते हैं. आपने जो चाय बनाया उसका टेस्ट एक होगा कि अलग होगा? श्योर? सबका अलग होगा? सेम क्वांटिटी है, सेम रिसोर्सेज है, सेम रॉ मटेरियल है, फिर अलग टेस्ट क्यों होगा? तो टेस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट? द पर्सन. मार्केट सबके लिए एक है, इकोनॉमी सबके लिए एक है. आप सबका रिटर्न एक होता है कि अलग होता है? तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिटर्न्स? यू, नोबडी एल्स. तो कहाँ से रिटर्न आता है, कैसे रिटर्न आता है, ये थोड़ा हम दोस्तों समझने की कोशिश करें और बहुत आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे. What is the biggest problem when we face when we come for the world of investing? ध्यान से मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा. Whatever you are today, or today to the training of your parents, training of your school. तो अपने बचपन को याद कीजिए. मैं आपको आपके चाइल्डहुड में लेके जाता हूँ. आपके पेरेंट्स आपको स्कूल में भर्ती करते हैं, आपको ट्रेन करते हैं, आपको एजुकेशन देते हैं, आपको शिक्षा देते हैं. जो कुछ उन्होंने आपको ट्रेनिंग दिया है, ये ट्रेनिंग पैसा कमाने के लिए काम का है कि पैसा बनाने के लिए काम का है? तो हमें क्या सिखाया है सोसाइटी में? पैसा कैसे कमाते हैं. आपको ये नहीं सिखाया कि पैसा कैसे बनाते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमाना एंड बनाना? लेट अस अंडरस्टैंड दिस. पर बिफोर दैट, कमाने से भी पैसा मिलता है और बनाने से भी पैसा ही मिलता है. What is the target of your life? That's very interesting thing we need to understand before we start investing. Before we start investing, आप जब इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपका पहला मोटो क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, राइट? कॉर्पस तो एक टूल है कि मुझे एक कॉर्पस बनाना है, पर व्हाट फॉर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ? और वो पर्पस अगर आपको समझ में आ गया तो आपको मोटिवेशन मिलता है. विदाउट पर्पस देयर इज नो मोटिवेशन, एंड विदाउट मोटिवेशन देयर इज नो कंसिस्टेंसी, एंड विदाउट कंसिस्टेंसी देयर इज नो कंपाउंडिंग. So what you have to clearly understand is one thing: what is the purpose of investing, and it will come from what is the purpose of life. You were saying something, sir? Yeah. Physical health, mental peace. Okay. You know, everybody zabardast baat kahi. Physical health. How many of you want good health in life? Everybody. Sure. Are you honest? Morning walk is good for health or bad for health? How many go for morning walk? अभी देखिए अभी क्या हो गया. This is called cognitive dissonance. We are दुर्योधन. हम सब दुर्योधन हैं. हम सब जानते हैं कि सही क्या है पर सही करते नहीं हैं. Why? Because we don't understand, we don't differentiate between two things, and it is short term and long term. There are only 4 words we need to understand investing. What are these 4 words? Inflation, interest rate, short term and long term. There is no 5th word required. 5वां शब्द आपको समझने की जरूरत नहीं है. Like I challenge you, I give a homework to you. Keep my phone number and tell me what is the definition of long term and short term. You will not find anywhere. कहीं नहीं मिलेगा आपको. Except our scriptures. हमारे स्क्रिप्चर्स में इसका जवाब है. शॉर्ट टर्म को बोलते हैं सर्प दृष्टि और लॉन्ग टर्म को बोलते हैं गरु दृष्टि. आई डोंट नो वेदर यू हर्ड दिस वर्ड्स और नॉट. गरु दृष्टि, गरु जो बहुत दूर देख सकता है, सांप जो दूर देख नहीं सकता है क्योंकि वो रेंग के चलता है.
And we need to understand the short term and long term. So आप सबको हेल्थ चाहिए, आपने कहा आपको हेल्थ चाहिए, आप सब जानते हैं कि मॉर्निंग वॉक से अच्छी हेल्थ मिलती है, तो हम जाते क्यों नहीं? हम सबको वेल्थ चाहिए, हम सब जानते हैं कि वेल्थ कैसे बनती है, तो फिर हम बनाते क्यों नहीं? That's very thing we need to understand, friends. और वहीं से मैं बात शुरू करूंगा. But let us come back to our word. What is the purpose of life? It's very tough to answer what is the purpose of life. But there is one person who has given a very good answer to this question. And that person is Thomas Jefferson. When America got independence 4th of July 1775, they wanted to declare it to the Americans that we are independent now. जॉर्ज वाशिंगटन बोलते हैं थॉमस जेफरसन को कि हम क्या बोले उनको. He whole night he was sitting and writing a document that is called Declaration of Independence. और उसमें उन्होंने कहा कि मैं आपको बधाई देता हूँ कि अमेरिका आज़ाद हो गया, लेकिन हमें आज़ादी क्यों चाहिए? हमें आज़ादी क्यों चाहिए? तो आगे लिखते हैं थॉमस जेफरसन, वी नीड फ्रीडम फॉर ओनली वन थिंग, एंड दैट वन थिंग इज परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. आप जिंदगी में मजे से रहना चाहते हो, isn't it? You want bliss in life, happiness in life. And Thomas Jefferson says that happiness doesn't come without freedom. So why you should do investing? To achieve freedom. What is freedom? जब आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो आप जवाब देते हैं जो मेरी इच्छा. आप इससे कितने लोग जवाब देते हैं जब आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो आप क्या कहते हैं? और ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. मैं सवाल बहुत पूछूंगा, बिकॉज आई नीड टू अंडरस्टैंड योर फिलोसॉफी. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द फिलोसॉफी, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द इन्वेस्टिंग सीक्रेट्स. मेरा अगला सवाल सुनिए. आपके पास दो चीजें हैं जिंदगी में जो बहुत जरूरी है, इससे ज्यादा कीमती आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है. द मोस्ट टू वैल्यूएबल थिंग्स इन योर लाइफ, सबसे ज्यादा कीमती है आपका पैसा. पैसा नहीं तो जिंदगी बेकार है. और आपका समय, दुनिया भर का पैसा आपके पास है, समय नहीं है, तब भी जिंदगी बेकार है. तो समय भी कीमती है, पैसा भी कीमती है. बताइए ज्यादा कीमती क्या है? सोच के जवाब दीजिएगा. पक्का टाइम ज्यादा कीमती है. माय गुडनेस. चलिए मैं पता करता हूं कितने ईमानदार हैं. डे साहब ने आपको बुलाया, आप यहां पर इस मीटिंग में संडे को आ गए कि हम मीटिंग में बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, और आप आ गए. आपने क्या दिया हम लोगों को? जो आपने कहा कि पैसे से ज्यादा कीमती है. आपने कहा ना समय ज्यादा कीमती है. अगर आशीष साहब आपसे ये कहते कि आप मीटिंग पे आइए और कुर्सी के हिसाब से, सीट के हिसाब से 1000 से 2000 रुपए लगेंगे, आप आते कि नहीं आते? तो बताइए ज्यादा कीमती क्या हुआ? देखा आपने हमारी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? हमारी दो प्रॉब्लम्स है. बुरा मत मानिएगा, डोंट टेक इट अदरवाइज. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, जिनसे मैंने सीखा है. ह्यूमंस हैव टू इश्यूज. वन इज वी आर लेजी क्रिएचर्स. हम बहुत आलसी हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट में थोड़ा दिमाग नहीं लगाते हैं. और दूसरा, हम बहुत बेईमान हैं, बहुत बेईमान हैं. वी आर डिसऑनेस्ट. ऑनेस्टली स्पीकिंग, ह्यूमंस आर डिसऑनेस्ट. But humans are intelligent creatures. They are wise creatures. They learn from experience. उन्होंने एक्सपीरियंस से सीखा है कि डिसऑनेस्टी इज ए बैड थिंग. आप कोई भी बेईमान को दोस्त बनाएंगे? नहीं बनाएंगे. तो हम डरते हैं दूसरे से बेईमानी करने में, क्योंकि दूसरे से बेईमानी करेंगे रिश्ते बिगड़ जाएंगे, सजा मिलेगी. लेकिन बेईमान तो है, तो जिंदगी भर किससे करते हैं? खुद से करते हैं. इन्वेस्टिंग में बेईमानी काम नहीं आती. You have to be honest to yourself कि आप ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं. आशीष भाई, अगर आपसे पूछते हैं कि पैसा कितने समय के लिए डाला है, तो आपको ईमानदारी से जवाब देना है. और आप इसका जवाब भी ईमानदारी से देते हैं क्या? सोचिए आप. क्या हम खुद से सवाल करते हैं? खुद से ईमानदारी से सवाल करते हैं? ईमानदारी नहीं है तो इन्वेस्टिंग सक्सेस नहीं आएगी दोस्तों. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, फ्रीडम का मतलब क्या है? आइए इस बात को समझते हैं. बंगाल कल्चर में what is the importance of concept of स्वर्ग? You heard this word स्वर्ग, heaven? ये सब सुना है आपने? क्या मतलब होता है इसका? स्वर्ग का मतलब क्या होता है? क्या है स्वर्ग? बहुत सुंदर जगह है. लैंड ऑफ एटर्नल पीस इज वैकुंठ, नॉट स्वर्ग.
Ultimate peace is Vaikunt, emancipation, moksha. इंसान को जब मोक्ष मिलता है तो कहाँ जाता है? वैकुंठ जाता है। लेकिन इंसान को आनंद चाहिए तो कहाँ जाता है? स्वर्ग में जाता है। So what is the difference between Vaikunt and Swarga? Vaikunt gives you moksha, nirvana, then you come, it doesn't come back to मृत्यु लोक। स्वर्ग आपका एक चेक इन चेकआउट है। जब तक आपका इन्वेस्टमेंट लास्ट करेगा, आप स्वर्ग में रहेंगे, फिर वापस नया जन्म लेके वापस धरती पर आ जाएंगे। तो मैंने अपनी ग्रैंडमदर को सवाल पूछा कि माय ग्रैंडफादर इज नो मोर, आप उनके नाम के आगे स्वर्गीय क्यों लिखते हैं, वैकुंठवासी क्यों नहीं लिखते हैं? बिकॉज वैकुंठ इज अ सुपीरियर प्लेस देन स्वर्ग। एंड she says that very few people understand peace, but everybody understand temporal happiness. सांसारिक आनंद सभी समझते हैं। और स्वर्ग में क्या मिलता है बताइए? सांसारिक आनंद ना, वहाँ डांस होता है, म्यूजिक होता है, वहाँ ड्राई स्टेट नहीं होता है, शराब मिलती है, जो आपको खाने को चाहिए वो खाना मिलता है, जो आपको पहनने को चाहिए आपको पहनने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आपने धरती पर रह के अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम किए मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया है। और जैसे आप स्वर्ग में जाते हैं ना, चित्रगुप्त आपको कूपन देते हैं। उस कूपन को बोलते हैं अक्षय पात्र, कल्प तरु, कामधेनु, सुना है आपने? उनसे आप जो मांगते हैं आपको मिलता है। तो स्वर्ग क्यों है? क्योंकि वहां आप जो चाहते हैं आपको मिलता है और उसका पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब आप ज्यादा खुश रहना चाहते हैं तो आप कहते हैं मैंने धरती पर स्वर्ग बनाया। बोलते हैं कि नहीं? कुछ लोग अपने घर का नाम स्वर्ग रखते हैं, मैंने धरती पर स्वर्ग बनाया। वाई? बिकॉज स्वर्ग गिव्स यू फ्रीडम टू गेट एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। क्या जिंदगी में ये पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है। जब आप पैसा कमाते नहीं हैं, बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा, पैसा कमाने में दिक्कत क्या है? पैसा कमाने में दिक्कत है कि आप कुछ भी काम करते हैं। जब आप पैसा कमाते हैं तो अपना टाइम देते हैं और सामने वाला आपको, दिस इज द ट्रांजैक्शन, दिस इज द ट्रांजैक्शन। आप एडवोकेट हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप शॉपकीपर हैं, आप दिन भर शॉप में बैठते हैं, आप क्या कर रहे हैं? अपना टाइम किसको दे रहे हैं? कंज्यूमर को, कस्टमर को। और वो आपको क्या दे रहा है? पैसा। और आपने क्या कहा था ज्यादा कीमती क्या है? अगर आप ज्यादा जिंदगी भर पैसा कमाते रहेंगे तो कभी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि आप अपना समय दूसरे को खर्च कर रहे हैं। कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं तो आप बोलेंगे मैं दुकानदार हूं। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं वो करता हूं जो मेरी मर्जी। सो व्हाट इज द फर्स्ट टारगेट ऑफ इन्वेस्टिंग? द फर्स्ट टारगेट ऑफ इन्वेस्टिंग इज टू अचीव एज सून एज पॉसिबल इन योर लाइफ the corpus large enough which generates income more than your income which you generate from earning income. That's the first target. और जिस दिन लाइफ में आपको वो चीज मिल गई, उसके बाद आप वो करते हैं जो आपका पैशन है। पैशन का मतलब है वो काम जो आप बिना पैसे के लिए भी करने के लिए तैयार हैं। How many of us are able to pursue our passion in our life? क्यों? क्योंकि हमें कमाने की चिंता है। लेकिन अगर आपने सही इन्वेस्टिंग कर लिया और समय दे दिया, 15 साल मिनिमम चाहिए, इससे कम, इससे जल्दी नहीं होगा। आप देखिए एक दिन आपको पैसिव इनकम एक्टिव इनकम से ज़्यादा हो जाएगा और उस दिन आप सही मायने में फ्री हो जाएंगे। और जिस दिन आप फ्री हो जाएंगे आप हैप्पी हो जाएंगे। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, फ्रीडम के बिना वो आ ही नहीं सकती है। तो कैसे करना है? प्रॉब्लम क्या है? पैसा बनाना हम क्यों नहीं कर पाते हैं? इसका रीज़न ये है कि हमारे पेरेंट्स ने हमको पैसा बनाना सिखाया नहीं है, पैसा कमाना सिखाया है। पैसा कमाने में कंपटीशन है, आप दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। पैसा बनाने में कंपटीशन नहीं है। पैसा बनाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पैसा बनाने का प्रॉब्लम यह है कि आपको यहाँ पर दूसरे को नहीं हराना है, यहाँ पर आपको खुद को जीतना है। कैन यू सी द डिफरेंस? इन इन्वेस्टिंग यू डोंट कम्पीट विद अदर्स। लेकिन हम म्यूचुअल फंड वालों ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। कैसे? हम बोलते हैं हमारा फंड आउट परफॉर्म करता है, हमारा फंड दूसरे को हराता है। अरे वी आर इन बिजनेस, वी आर नॉट इन्वेस्टिंग। हम तो बोलेंगे कि हमारा फंड दूसरे फंड से अच्छा कर रहा है। आपको उस पर नहीं जाना है, आपको कंपीट नहीं करना है, आपको कॉर्पस टारगेट करना है कि कौन सा कॉर्पस आपको आज़ादी देता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी दुनिया में कौन आता है बताइए? हु इज योर वर्ल्ड? आपकी दुनिया किससे है? योर फैमिली। आपने जो पैसा बचाया है किसके सपनों के लिए बचाया है? किसकी सिक्योरिटी के लिए बचाया है? किसके सपनों के लिए बचाया है? किसके हैप्पीनेस के लिए बचाया है?
जो आप पोर्टफोलियो बनाएंगे वो अपने फैमिली की नीड के लिए बनाएंगे कि पड़ोसी के को हराने के लिए? You don't compete with others. You achieve your dreams. And this is what Lord Gajanan says. And that's why he is God of wisdom. So the first thing we need to understand in investing is मुझे वो रिटर्न नहीं चाहिए जो दूसरे से ज्यादा है. मुझे वो रिटर्न चाहिए, मुझे वो कॉर्पोरेट चाहिए जो मेरे परिवार के हर सपने को. And the moment you do this, you are at peace because you're not competing. So I'll give an example, you will be able to understand. How many of you heard the name of a person called Rakesh Jhunjhunwala? Okay, many of you have heard of him. Why? Why you know him? What great he has done in his life? One of the most successful investors in India. अच्छा, कौन से स्टॉक में उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा बनाया? अब आप ये भी जानते हैं. कितनी मजेदार बात है ना कि आप जानते हैं कि उन्होंने कौन से स्टॉक में पैसा बनाया. अब आप सब लोग ये जानते हैं, चाहते हैं कि मुझे वो स्टॉक पता लग जाए जिसमें पैसा बनेगा. आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैंने एक स्टॉक का नाम बताऊं जिसमें पैसा बनेगा? सब चाहते हैं ना. आपको अगर स्टॉक का नाम पता भी लग जाए ना तब भी आपका पैसा नहीं बनेगा. क्यों? टाइटन क्या केवल उन्होंने खरीदा था? अगर आपको ये बता दिया जाए ना कि ये म्यूचुअल फंड का स्कीम अच्छा करेगा तब भी आपका पैसा नहीं बनेगा. क्योंकि आप रूल ऑफ 72 जानते हैं. रूल ऑफ 72 क्या है? और इस रूल ऑफ 72 मुझे उस आदमी को ढूंढना है जिसने रूल बनाया है. क्यों बनाया उसने ये रूल? उस रूल ने आपके दिमाग में क्या डाल दिया है कि इन्वेस्टमेंट का टारगेट क्या है? डबल करना, और डबल करके बाहर आ जाना. हमारी प्रॉब्लम क्या है? इस प्रॉब्लम को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा. इट्स नॉट ए चैलेंज, इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ वी इन्वेस्टर्स. हम राकेश झुंझुनवाला क्यों नहीं बन पाते हैं? क्या प्रॉब्लम है और कहां से प्रॉब्लम आती है? 2003 में उनको किसी ने टाइटन खरीदने के लिए बोला. ऑफ मार्केट डील में उन्होंने 10 लाख के शेयर्स खरीद लिए. 10 लाख शेयर्स खरीद लिए एट द प्राइस ऑफ 40. काफी समय से टाइटन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट ही गॉट एट ए गुड प्राइस, सो ही बॉट देम. उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो 4 महीने में दुगना हो गया, 80 रुपया हो गया. अब आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है जो 4 महीने में दुगना हो गया. आपके मन में क्या ख्याल आएगा? ईमानदारी से बताइए. पैसा निकालने के लिए. क्यों? मुझे ये बात 10 साल तक समझ में नहीं आई. अचानक से एक दिन समझ में आई ड्यू टू वन पर्सन कॉल्ड डेनियल कैनमैन. मैंने आपसे कहा था कि पहले 10 साल तक मैंने ज्यादा पैसा नहीं बनाया. आई वॉज फेल्ड एज एन इन्वेस्टर. मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ तो अखबार पढ़ता था, इकोनॉमिक्स का अखबार पढ़ता था. उसमें न्यूज थी डेनियल कैनमैन गॉट नोबेल प्राइज. 2002 में उनको नोबेल प्राइज मिला. आई वांटेड टू नो व्हाई ही गॉट नोबेल प्राइज. सो ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर हिज थ्योरी कॉल्ड प्रॉस्पेक्ट थ्योरी. और उनको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं इन्वेस्टिंग में गलतियां क्या कर रहा हूँ. एंड देन आई वाज अ बेटर इन्वेस्टर कंपेयर्ड टू द प्रीवियस 10 years. तो उनका थ्योरी को एग्जैक्टली तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, बट आई विल टॉक टू यू इन अ डिफरेंट वे एंड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमंस थिंक एंड व्हाई दे थिंक द वे दे थिंक. सो रीजन क्या है? इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, डोंट टेक इट अदरवाइज. हाउ मेनी ऑफ यू आर बिलीवर्स इन गॉड हियर? गॉड बिलीवर्स. ईश्वर को मानते हैं आप लोग? ईश्वर को मानते हैं. अच्छा, आप में से कितने लोग भूत को मानते हैं कि भूत होते हैं, स्पिरिट्स, घोस्ट? रेज हैंड्स. So few of you believe in ghost as well. तो ज्यादा लोग किसको मान रहे हैं इस ग्रुप में? गॉड को मानने वाले ज्यादा हैं. ओमनी प्रेजेंट कौन है? गॉड. सर्वव्यापी कौन है? गॉड. हर जगह कौन है? गॉड. हमें किसने बनाया? गॉड ने. हम सब ये बात मानते हैं, ठीक है. हम में से कुछ लोग भूत को मानते हैं, पर भूत को मानने वाले कम हैं. मेरा सवाल सुनिएगा. अमावस की रात है, नो मून, राइट? कार्तिक अमावस्या अभी गई दिवाली की, तो अंधेरा. अमावस में क्या होता है? अंधेरा होता है. आप अकेले जंगल से जा रहे हैं, कौन नजर आएगा? कौन नजर आएगा? हिंदुस्तान में 6.5 लाख गांव हैं. 6.5 लाख गांव हैं. आप एक काम कीजिए, हर गांव में जाइए. आपको हर गांव में एक आदमी मिलेगा, एक बूढ़ा आदमी मिलेगा जो क्लेम करेगा उसने भूत को देखा है. ये हॉन्टेड हाउस है. सुना ना, हॉन्टेड हाउस. एक खाली घर होगा, गांव में कोई रहता नहीं है. क्यों नहीं रहता? इसमें भूत रहते हैं. लेकिन आपको कोई नहीं बोलेगा यहाँ भगवान रहते हैं. एक भी आपको क्लेम करने वाला आदमी नहीं मिलेगा जिसने बोला है कि मैंने भगवान को देखा. प्रॉब्लम क्या है? ध्यान से समझिएगा. प्रॉब्लम यह है कि हमारे दिमाग के सोचने का तरीका क्या है. गॉड इज ए बेनेवोलेंट एंटिटी.
वो बेनेवलेंट है, दयालु है, कृपालु है। जो कुछ मेरे पास है गॉड ने दिया है। वी स्ट्रांगली बिलीव इन दिस कि मेरे पास जो कुछ है भगवान ने मेरे को दिया है। तो आपका ब्रेन कैसे सोचता है? आपका ब्रेन आपको कहता है कि भगवान की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ है वो ईश्वर का दिया हुआ है। ईश्वर अगर आएगा तो कुछ दे के ही जाएगा, चिंता की बात नहीं है। चिंता भूत की करो, क्योंकि वो आ गया तो जो है उसको लेके जाएगा। तो जंगल में अंधेरी रात में आपको कौन नजर आएगा? कि भूत आ गया तो जान लेके जाएगा। भगवान तो कुछ नहीं करेगा ना। तो जब आपका 40 का 80 हो जाता है तो आपको कौन नजर आता है? आप जानते हैं? आपको भूत नजर आता है। कहीं ये 70 नहीं हो जाए, कहीं ये 60 नहीं हो जाए। जितने भी लोगों ने टाइटन खरीदा उन्होंने 80 भी बेच दिया। रात भर सोचते रहे होंगे राकेश झुनझुनवाला कि मुझे इसको बेचना है कि नहीं बेचना है। भूत तुमको भी दिखाई दिया होगा ना। उन्होंने फैसला किया कि मैं नहीं बेचूंगा, और वो शेयर बढ़ता 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 2005 में 400 रुपए का हो गया। उन्होंने और खरीदा। वो शेयर बढ़ता 2007 में 800 रुपए का हो गया। उन्होंने इतना खरीदा कि 5% की ओनरशिप टाइटन की उनके पास में हो गई। अब बताइए हम में से कितने लोग एनएवी बढ़ती रहती है तो म्यूचुअल फंड खरीदते रहते हैं? आप एवरेजिंग कब करते हैं? नीचे जब जाता है कि ऊपर जब जाता है? जब नीचे जाता है। तब स्टोरी में मुझे बताइए राकेश झुनझुनवाला ने दूसरों को हराया कि खुद को जीता? And this is what we need to understand, friends. Don't look at others in investments. हमारी आदत है looking at others. Why looking at others? Because we compete with others. Benchmarking हम दूसरे की करते हैं। मुझे इससे ज्यादा नंबर चाहिए तभी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। मेरे माँ बाप मेरे पीछे रहते थे, बेटा दिन भर पढ़ाई कर, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। फर्स्ट आई यूज्ड टू बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्यों मिली थी मेरे को? आई एंटर्ड इनटू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? आपको नंबर अच्छे नहीं लाने, दूसरे से ज्यादा लाने। बेंचमार्किंग। हम उस तरह से जिंदगी को जीते हैं। लेकिन जब आप घर जाएंगे, अपनी कार को जब आप चलाएंगे, आप बेंचमार्किंग करेंगे कि मुझे इस कार से तेजी रहना है? नहीं करेंगे ना। आपके ध्यान में सिर्फ एक चीज रहेगी, मुझे घर पहुंचना है। बस इन्वेस्टिंग में भी आपको यही करना है दोस्तों। तो हम ऐसा करते क्यों नहीं है? रीजन क्या है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। क्यों हम उनसे बोल्ट को जानते हैं, अब एलियट किपचोगे को नहीं जानते? व्हाट इज द रीजन? अगेन आई विल टेक बैक यू टू द जंगल लाइफ। We used to live in jungle. Jungle में there is no tomorrow. There is only present. You don't plan in jungle. जंगल में long term नहीं होता है। जंगल में imagination नहीं होता है। No creatures can imagine. Einstein एक बार कहा था knowledge is not power. We all believe that knowledge is power. Einstein argues that knowledge is not power. Imagination is power. When Wright brothers thought that they will make man fly in the sky, तो हवाई जहाज को बनाने की knowledge जानते थे कि imagination जानते थे वो? इमेजिनेशन कम फर्स्ट। तो जब आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं ना तो आपको इमेजिन क्या करना आप जानते हैं, और आप तभी कामयाब होंगे। अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, इट इज द नंबर 1 सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग। इन 2024 यू विल थिंक अबाउट योरसेल्फ हाउ यू विल बी इन 2044। मैं एक सवाल पूछूंगा और उस बात से आपको समझ में आ जाएगा। एनीबडी विल वॉलंटियर टू आप संजीव जी आप वॉलंटियर करेंगे? बैठिए बैठिए, नहीं बैठ के जवाब दीजिए। आपकी अभी एज कितनी है अगर आप बताना चाहें तो? 51 एज है। जिंदगी में पहली बार आपको कब चिंता हुई कि आपको पैसा कमाना चाहिए? एट व्हाट एज? 25 साल की। तो 25 साल की उम्र में आपको पहली बार लगा कि आपको पैसा कमाने की जरूरत है और आपको पैसा कमाना चाहिए। उस वक्त 25 साल की उम्र में आपने सोचा था कि जब आप 51 के होंगे तो आपके पास कितना पैसा होगा? अच्छा, जितना आप आज कमा रहे हैं वो आपके उस वक्त जो आपकी सोच थी उससे ज्यादा कमा रहे हैं कि कम कमा रहे हैं? देखा आपने? पहले तो हम लंबा सोचते नहीं हैं, और सोचते हैं तो बहुत छोटा सोचते हैं। आप में से किसी ने भी 18-20 साल की उम्र में कल्पना नहीं की होगी कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। हम टारगेट, इसीलिए मैंने आपसे कहा 100 करोड़। अगर आप 25 साल के हैं, टारगेट 100 करोड़ एंड यू विल अचीव इट। ऐसा नहीं कि आप अचीव नहीं करेंगे। एक एक्सरसाइज करेंगे आप, थोड़ा अजीब सा एक्सरसाइज करेंगे आप, है ना? एनीबडी विल हेल्प मी फॉर 10 सेकेंड्स। आप स्टॉप वॉच में 10 सेकेंड्स लिखिएगा जरा, है ना? ठीक है। आप पहले मन में डिसाइड कीजिए कि मैं आपको 10 सेकेंड्स के लिए क्लैप करने के लिए बोलूंगा। अपने हाथ को क्लैप करना जितना जल्दी आप कर सकते हैं।
लेकिन आप अभी सोचिए कि 10 सेकंड्स में आप कितने टाइम्स क्लैप कर सकते हैं। सोच लिया नंबर, सोचिए कि आई कैन क्लैप 5 टाइम्स इन 10 सेकंड्स, 10 टाइम्स इन 10 सेकंड्स, 15 टाइम्स इन 10 सेकंड्स। सोचिए आप, है ना, व्हाट अ नंबर, 10, 15, 20, सोच लीजिए आप। सोच लिया, फिक्स रहिए उस नंबर पे। अब आपको एक्चुअल क्लैप करना है और हम देखते हैं रिजल्ट क्या होता है ना। 1 मिनट, स्टार्ट करें। नहीं, स्टार्ट बोलना आपको बस, स्टॉप वॉच में स्टार्ट। स्टॉप। ठीक है, आपने काउंट किया था, आपके नंबर से ज्यादा है कि कम है? देखा आपने? कितना सिंपल सी बात है। हम क्यों इतना छोटा सोचते हैं? क्या रीजन है इतना छोटा सोचते हैं? हम विजुअलाइज, आप क्यों नहीं विजुअलाइज करते हैं कि, और इसीलिए ड्रीम करना बहुत जरूरी। लॉन्ग टर्म आप तब तक अचीव नहीं करेंगे जब तक आप लॉन्ग टर्म को ड्रीम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में फीलिंग नहीं होती है। एंड हियर आई कम द बिगेस्ट इश्यू विद इन्वेस्टिंग, वी ह्यूमंस, कि हम फेल क्यों होते हैं इन्वेस्टिंग में? क्या रीजन हम फेल होते हैं? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। व्हाट इज शॉर्ट टर्म एंड व्हाट इज लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म इज इमेजिनेशन एंड शॉर्ट टर्म इज फीलिंग। आपने कहा कि आपको अच्छी हेल्थ चाहिए। आप सभी जानते हैं कि अच्छी हेल्थ तब मिलती है जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे। ठीक है, तो आप मॉर्निंग वॉक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अलार्म लगाना पड़ेगा। रात को 10 बजे आप अलार्म लगाएंगे, आई विल वेक अप एट 4:30 AM। रात को आप सोच रहे हैं आई विल वेक अप एट 4:30 AM, ये इमेजिनेशन है कि नहीं है? इट इज नॉट येट हैपेंड, इट विल हैपन समटाइम इन फ्यूचर। तो आप कल्पना कर रहे हैं ना कि सुबह उठूंगा और मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा। और ये कौन तय कर रहा है कि सुबह उठ के जाऊंगा? कौन सोच रहा है? योर ब्रेन। ये कहां, ये सारी बात कहां हो रही है? ब्रेन में हो रही है। तो इमेजिन कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। ब्रेन की प्रॉब्लम है, वो जानता सब कुछ है, समझता कुछ नहीं है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जानना एंड समझना? फीलिंग, नोइंग। अभी 4:30 बजेंगे कि नहीं बजेंगे? आप सो गए, 4:30 बजेंगे। ब्रेन को कैसे मालूम चलता है कि 4:30 बज गए? अलार्म बजने से। अलार्म को पहले कौन सुनता है? कान सुनते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स। और कान दिमाग को बोलते हैं भैया अलार्म बज गया। ब्रेन ऑर्डर देता है बॉडी को, उठ जाओ, वेक अप। एंड वेक अप मींस योर ऑल 5 सेंसरी ऑर्गन्स आर नाउ एक्टिव। सूनर दे आर एक्टिव, दे आस्क ए क्वेश्चन टू योर ब्रेन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? तो ब्रेन क्या जवाब देगा? हैप्पीनेस। ब्रेन यही बोलेगा, पर्पस ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस। सेंसरी ऑर्गन्स अगला सवाल पूछेंगे, सोने में मजा आएगा कि बाहर जाने में मजा आएगा? क्या जवाब मिलेगा? और आप क्या करेंगे? दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में आप फील करते हैं, लॉन्ग टर्म में आप इमेजिन करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि बाजार गिरने पर SIP दुगनी कर देनी चाहिए। जानते कि नहीं जानते? पर आप जानते हैं एक्चुअली होता क्या है? SIPs बंद हो जाती है। हम सब लोग सही जानते हैं, हम सब दुर्योधन हैं, सब जानते हैं कि सही क्या है। एक बड़ा अच्छा किस्सा है महाभारत का, मैं आपको बताता हूं। लड़ाई से ठीक पहले भगवान कृष्ण शांति दूत बन के जाते हैं, सुना आपने? है ना? पीस टॉक के लिए जाते हैं कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। और एक ऑफर देते हैं दुर्योधन को। वो ऑफर क्या बोलते हैं? They are 5 brothers. They two want to live. They want to survive, and they were kings. और राजा जिंदा कैसे रहता है? राजा की इनकम क्या होती है? राजा की इनकम होती है रेवेन्यू, लेवी, ये जो आप लेवी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? लगान, राइट? यही तो रेवेन्यू होता है। तो उन्होंने कहा कि राजा हैं, ये थोड़े दूसरा काम करेंगे। एक भाई को एक गांव दे दो, 1 village per person. Give us 5 villages and we will not fight. दुर्योधन बोलता है कि मैं गांव छोड़िए, एक सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। तो कृष्ण कहते हैं कि चलो फिर ठीक है, फिर युद्ध में मिलते हैं। तो शकुनी दुर्योधन को बोलता है कि ये सब लफड़ा यही कराता है, कृष्ण ही कराता है, तुम उसको पकड़ लो। और वो सैनिकों को बोलता है अरेस्ट। और उसके बाद में आप स्टोरी जानते हैं। और पूरे महाभारत में जो विराट रूप है, श्री कृष्ण का असली रूप, वो केवल 2 लोगों को दिखाते हैं, अर्जुन को और दुर्योधन को। और दुर्योधन को समझ में आ जाता है कि कृष्ण कौन है, और कृष्ण उसी वक्त उसको सजा देने वाले होते हैं, शिशुपाल के जैसे उसी वक्त उसको मारने वाले होते हैं। दुर्योधन को समझ में आ जाता है कि कृष्ण मुझे मारने जा रहे हैं।
कृष्ण के कदमों पे दुर्योधन गिरता है और गिर के जानते हैं क्या बोलता है, बड़ी खूबसूरत बात बोलता है, इसीलिए उस कृष्ण ने उसको माफ कर दिया। जिंदगी में पहली बार उसने ईमानदारी से एक बात कही और उसने कहा कृष्ण को, मुझ पर दया करो। दया क्यों करो? क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति के साथ आपको दया करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? Why you should pity me? क्योंकि मैं वो आदमी हूं जो जानता है कि सही क्या है, मैं वो आदमी हूं जो जानता है कि धर्म क्या है, लेकिन फिर भी उसको करता नहीं। तो बताइए हम लोग दुर्योधन है कि नहीं है? यहां सब लोग जानते हैं कि सही क्या है, तो फिर हम करते क्यों नहीं है? Because we are not coming out of the conflict of feeling and imagination. So if you want to make 50 crores and 100 crores, you have to imagine first. आपको 2024 में सोचना है कि आपका घर 2044 में कैसा दिखाई देगा, आपका घर कैसा होगा, आपका खाना कैसा होगा, आपके कपड़े कैसे होंगे, आपकी गाड़ी कैसे होगी, दुनिया में कैसे घूमेंगे, ये आपको ड्रीम करना है। आप फिल्में देखते हैं, फिल्मों में जब एक हीरो को हीरोइन से प्यार होता है, अभी होता नहीं है, वो हीरोइन के पीछे पड़ रहा है, प्रपोजल दे रहा है, डायरेक्टर क्या दिखाता है? वो ड्रीम कर रहा है कि शादी हो गई है, बंगला है, 3 बच्चे, दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? एंड दैट गिव्स हिम पावर टू परसिस्टेंटली उस हीरोइन को प्रपोज करते रहना, चाहे वो मना करे तब भी। यू हैव टू ड्रीम दैट। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो प्रॉब्लम है, इससे आप बाहर तभी आ सकते हैं जब इमेजिनेशन को आप ड्रीम करते हैं। नाउ कम द थर्ड स्टेप, क्या पैसा बनेगा? ये सब मैं कर लूंगा, क्या मेरा पैसा बनेगा? एक शब्द है जो आपको बहुत प्यारा है और वो शब्द है गारंटी। क्या है कि पैसा बनेगा? जरूरी है कि अगले 20 साल में पैसा बनेगा। आइए इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। आप मुझे बताएंगे कि पैसा कैसे बनता है। हम सभी जानते हैं पैसा कैसे बनता है, बताइए पैसा कैसे बनता है? आपके पास जो भी पैसा आता है कैसे आता है बताइए? किसी के? कितना सिंपल है ना। आप एक पैसा भी जो कमाते हैं, आपके बैंक में जब क्रेडिट आता है तो कैसे आता है? पहले कहीं से डेबिट होता है। इकोनॉमी इज ए डबल एंट्री सिस्टम। आपकी जो इनकम है वो किसी न किसी का खर्चा है। अब आप में से कोई भगवान नहीं है, आप में से कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। एक सवाल पूछूंगा, तुरंत जवाब दीजिएगा। सोचेंगे तो दिमाग करप्ट हो जाएगा। तुरंत जवाब दीजिएगा। आपके और आपके फैमिली के खर्चे आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं कि कम होने वाले हैं? इतना आसानी से आपने जवाब दे दिया। तो आपके खर्चे ही तो व्यापारी की इनकम है। तो अगर आप ये मानते हैं कि आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि बिजनेसमैन की इनकम, और बिजनेसमैन की इनकम बढ़ेगी तो मार्केट। कितना आसान। एंड व्हाई इंडिया इज ग्रोइंग, लेट अस अंडरस्टैंड दिस नाउ। मैं अगले 10 मिनट आपसे बात करूंगा इंडिया में क्या हो रहा है, लेकिन उसके पहले एक जरूरी बात करूंगा। आप मेरी कोई बात माने न माने मुझे चिंता नहीं है, पर अभी जो बात कहने जा रहा हूं इसको जरूर मानिएगा। अगर इस बात को आपने नहीं माना तो बहुत मुश्किल दिन आप देखेंगे। वो क्या है? मेरा सवाल सुनिएगा। आपकी फैमिली में कुछ बदला है 2010 के बाद, पर्टिकुलरली 2014 के बाद कुछ बदला है। वो क्या बदला बता सकते हैं? आपकी फैमिली में something has changed which has never happened before in your life. कभी आपकी लाइफ में पहले नहीं हुआ। आपकी फैमिली में, डिजिटल में, सोशल मीडिया, नो, फैमिली, आपकी फैमिली स्ट्रक्चर में, आपके फैमिली स्ट्रक्चर में कुछ बदला है जो पहले कभी नहीं हुआ। स्टाइल ऑफ लिविंग, ओके, ये तो बहुत पहले हो गया, ये बहुत पहले हो गया, ये बहुत पहले हो गया। अच्छा एक बात बताइए, पिछले 30 सालों में, पिछले 10 सालों में, पिछले 20 सालों में इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी है कि कम हुई है? श्योर? कोई है जिसके इंडिया में पॉपुलेशन कम हुई है? कौन है वो लोग? एनी आइडिया? कोई है जिसकी पॉपुलेशन कम हुई है? नहीं, मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हम होमो सेपियंस हैं, 3 लाख साल से दुनिया में हैं। 3 लाख साल से दुनिया में एक बात आपकी फैमिली में नहीं हुई है जो 2014 के बाद इंडिया में भी हुई है। दुनिया की बात ही नहीं कर रहा हूं। इस वक्त आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में, नंबर ऑफ पीपल मोर देन 60 years आर मोर देन नंबर ऑफ पीपल लेस देन 5 years। ऐसा इंसान की जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ है।
पहली बार हुआ है कि आपके सोसाइटी में जो ओल्ड हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और बच्चे कम है। पहला इम्पैक्ट सुनिएगा, पहला इम्पैक्ट, जब से इंसान दुनिया में आया है इस हॉल में कम से कम 50-60% लोग ऐसे होंगे जो अपनी ओल्ड एज में पहली बार अकेले होंगे। There will be no one around with you. You are unlike your ancestors, you are unlike your parents, you are unlike your grandparents. वो बहुत खुशनसीब थे कि अपने ओल्ड एज में अपने बच्चों के साथ रहते थे। आप पहली बार ऐसे होंगे जो अपने बच्चों के साथ नहीं रहेंगे। और मैन और वुमेन की लाइफ में 15 इयर्स का फर्क देखा जा रहा है। There are fair chances कि women among you will stay alone for 10-15 years, alone, without any spouse, without any partner, without any kids. Yes, this is going to happen. और अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो आपकी उम्र 100 साल से ज्यादा होने वाली है। दवाइयां इतनी अच्छी होंगी कि हमको मरने नहीं देंगी और महंगी इतनी होगी कि जीने नहीं देंगी। जीने की इच्छा तो सब में होती है ना। और आप सब गलतियां करेंगे क्योंकि इंसान ने ये चैलेंज पहले कभी देखा नहीं। इसके लिए आपको एक चीज की जरूरत है। वो चीज क्या है कि पैसा अपने आप बनना है। आपको सबको अक्षय पात्र बनाना है और ये होगा, जरूर होगा। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग क्या सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं मेरे पास तो बच्चे हैं, मेरे घर में तो बच्चे हैं। आपके घर के बच्चे को दुनिया ले जाएगी, क्योंकि दुनिया में जिस देश के पास, जिस समाज के पास जितनी ज्यादा पैसा है उसके पास उतने कम बच्चे हैं। आज यूके कौन चला रहा है आप जानते हैं? हिंदुस्तान से गए बच्चे चला रहे हैं यूके। अब यूके जाके देखिए वहां कौन काम करता है। राइट? आपके जो होशियार बच्चे हैं वो आपसे दूर चले जाएंगे, तो आप बच्चों के बिना रहने वाले हैं। और 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 20, 30, 25, 50 साल की बात करने वाला। तो रिटायरमेंट प्लानिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। हम में से कोई नहीं करता है दोस्तों, कोई नहीं करता है रिटायरमेंट प्लानिंग। ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है और जो होने वाला है। अब जो आगे बात करने वाला हूं वो आप माने ना माने आपकी इच्छा है। पहले जो मैंने बात की माने ना माने इच्छा है। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं ये गलत नहीं होगा, डायरी में नोट कर लीजिए। गलत नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि सब जगह हुआ है ये। राइट? और ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया में पैसा कमाने का मौके बढ़ रहे हैं। जब पैसा कमाने के मौके बढ़ते हैं तो पैसा कमाने की इच्छा बढ़ती है। और पैसा कमाने में ट्रांजैक्शन क्या होता है? आप अपना समय देते हैं और पैसा लेते हैं। तो जब आप पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा समय चाहिए। और आपसे सबसे ज्यादा समय कौन मांगता है? आपसे बच्चे। जिस घर में बच्चे होते हैं ना वो कैरियर की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, ऐसा बिलीफ है। तो जिस देश में कमाने के मौके बढ़ते हैं, जिस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, वहां अचानक से बच्चे कम होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इट विल हैपन। इट हैज हैपेंड इन एवरी सोसाइटी। वी आर नॉट यूनिक। इट विल गोइंग टू हैपन विद अस आल्सो। अगर आपको जब भी मौका मिले आशीष भाई साहब मिलेंगे, आशीष सर से आप मिलेंगे, आप उनसे पूछेंगे क्या मेरा अप्रोप्रिएट रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज डू इट, प्लीज बी सीरियस अबाउट इट। बहुत जरूरी है। और इंडिया आपको मौके दे रहा है। अगले 20 साल आपको जबरदस्त मौके दे रहे हैं पैसा बनाने का। इंडिया में इतना पैसा बनने वाला है जो आप सोच नहीं सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि योर एक्सपेंसेस इज नाउ आउट ऑफ योर कंट्रोल। इंडियंस आर लूजिंग देयर कंट्रोल ऑन देयर स्पेंडिंग। आई गिव एन एग्जांपल, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। आप अपने दोस्तों को याद कीजिए, अपने पड़ोसियों को याद कीजिए, अपने रिलेटिव्स को याद कीजिए, सबको याद कीजिए जिनको आप जानते हैं, एंड डिवाइड देम इनटू 2 ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप people more than 30 years. Second group people with age less than 30 years. ज़्यादा पैसा, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, इनकम किसके पास ज़्यादा होगी? किसके पास ज़्यादा होगी? जिनकी एज 30 से ज़्यादा है। मोबाइल किसका महंगा होगा? कुछ बात समझ में आ रही है आपके? Why we are losing control on spending? What is the reason? Reason is very simple. India is the only digital country in the world. There is no country in world which is as digital as India is. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है we have an आधार कार्ड। आधार कार्ड क्यों है? कि Indians doesn't know anything about freedom. Yes, we don't know anything about freedom. We allow our government to surveillance our life the way they want. किसी डेवलप्ड कंट्री में आधार हो ही नहीं सकता है। कोर्ट में चले जाएंगे कि हमारी हर चीज गवर्नमेंट कैसे जान सकती है। We have our private lives. But in India, we don't have our private lives.
अगर आपका आधार कार्ड है, हर जगह आपका आधार जरूरी है। आपके पास जो पैसा आता है वो आपको बाद में मालूम चलता है, गवर्नमेंट को पहले मालूम चलता है, बैंक को पहले मालूम चलता है। दे नो अबाउट यू मोर देन यू। इसकी वजह से आरबीआई की ताकत मिली है, और ताकत है यूपीआई। यूपीआई सब डिजिटल हो गए हैं। डिजिटल होने से क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। हम सभी लोग पैसों को प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। जब आप पैसा खर्च करते हैं और जेब से पैसा निकाल के दुकानदार को देते हैं तो आपकी आंखें देखती है और आपकी आंखें दिमाग को बोलती है क्या जुल्म कर रहे हो अपने साथ, अपना पैसा खर्च कर रहे हो, जिसको जो इतना प्यारा है दूसरे को दे रहे हैं। एक एग्जांपल दूंगा, आपको बात समझ में आएगी। 2020 के पहले वी हैव अ केबल कनेक्शन। एवरी मंथ दैट केबल पर्सन यूज्ड टू कम एट आवर हाउस एंड विल टेक द केबल का पेमेंट जो मांगता था वो। मेरी वाइफ का एवरी अल्टरनेट मंथ झगड़ा होता था, तुम 700 रुपये लेते हो, तुम 600 रुपये लेते हो, ये चैनल नहीं दिखाते हो, वो चैनल नहीं दिखाते हो। वो बोलता था ये चैनल के 15 रुपये और लगेंगे, इस चैनल के 50 रुपये और लगेंगे, आप और पैसा दीजिए तो मैं और चैनल दिखाऊंगा। हमेशा झगड़ा होता था उसके साथ। लेकिन जब से हमारे घर में फायर स्टिक आई है, डिजिटल हुआ है, और पेमेंट जब से मेरी वाइफ डिजिटल करने लगी है, मेरी वाइफ ने सोनी से, प्राइम से, नेटफ्लिक्स से कभी झगड़ा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको कैश में पेमेंट करती थी और नेटफ्लिक्स को डिजिटल पेमेंट होता है। डिजिटल पेमेंट में क्या होता है कि आपके आंखों को ट्रांजैक्शन दिखता नहीं है। जब उसको दिखता नहीं है तो दिमाग को मैसेज नहीं जाता है कि आप खर्चा कर रहे हैं। यू डोंट फील द पेन ऑफ सेपरेशन, यू डोंट वांट टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम योर मनी, और आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। जो लोग डिजिटल स्पेंडिंग करते हैं उनके खर्चे हमेशा ज़्यादा होते हैं उनसे जो लोग कैश में खर्चा करते हैं। एक होमवर्क देता हूँ, जाके कीजिएगा कि जब से यूपीआई आई है आपकी फैमिली में स्पेंडिंग बढ़ गई है कि कम हो गई है। देखिएगा आपकी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। You have lost your control in spending. The way Indians spend now, no other society spend, friends. और जब आप यूपीआई से स्पेंडिंग करते हैं, डिजिटल स्पेंडिंग करते हैं, तो पैसा बैंक के पास रहता है। जब कैश स्पेंडिंग करते हैं तो बैंक से पैसा निकल जाता है, और जब पैसा बैंक के पास रहता है तो बैंक आपको उधार दे सकता है। इसलिए बैंक आपको 3 शब्द हमेशा ऑफर करता है, रोजाना फोन करता है, नहीं तो एसएमएस भेजता है, और वो 3 प्यारे शब्द हैं, लोन चाहिए क्या? आता है आपके पास? मेरे फादर ने ये मैसेज पहले कभी नहीं सुना। नो बैंक कॉल्ड माय फादर, क्योंकि मेरे फादर कैश में डील करते थे। तो आपका खर्चा करने की इच्छा बढ़ रही है, आपके खर्चा करने की ताकत बढ़ रही है। पैसा नहीं है तो बैंक आपको पैसा देने के लिए तैयार है। और अब तो बैंक वाला, गूगल और बिजनेसमैन, ये 3 लोग इकट्ठे मिलके एआई का सहारा लेते हैं। और वो एआई का सहारा लेके क्या करते हैं, आपके मन में अगर ख्याल भी आया ना आपको डबल डोर फ्रिज चाहिए, आपके मोबाइल में फोटो आना शुरू हो जाएगी। देखा है कभी आपने? न केवल आपके मोबाइल में फोटो आएगी, आपको ईएमआई ऑफर्स आना शुरू हो जाएंगे। अब लोग घूमने भी ईएमआई पे जाते हैं, आप जानते हैं? मुझे किसी ट्रैवल वाले ने बोला जितने यंग कपल्स हनीमून के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं वो सब ईएमआई पे जा रहे हैं। What does it mean? इसीलिए जब मैंने आपसे पूछा कि आपकी फैमिली के खर्चे बढ़ने वाले हैं तो आपने क्या कहा? बढ़ने वाले हैं। और ये खर्चा बढ़ने की रफ्तार जो इंडिया की है ना, दुनिया में कहीं की नहीं है। होने क्या वाला है? FIIs अभी पैसा निकाल रहे हैं, आप रोज ये सुनते होंगे, भाड़ में जाएंगे। आप 1 साल के बाद जनवरी से आप सुनना शुरू करेंगे कि FIIs वापिस आने लगे। हिस्ट्री सीखिए, हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। जिस साल भी FIIs ने पैसा निकाला है ना, अगले साल देखिए क्या हुआ, उससे 4 गुना पैसा वो ज्यादा लेके आते हैं। कैपिटल चेज प्रॉफिट्स, और इंडिया में प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। जो इंडिया के कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटी है, ROEs आप उसको बोलते हैं, वो दुनिया के किसी भी बिजनेसेस का नहीं, एक्सेप्ट 4-5 कंपनीज जिसको फैंग कंपनीज बोलते हैं, वो इनोवेशन कंपनीज है। यूएस की वो 4-5 कंपनीज को हटा दीजिए, बाकी दुनिया में जितने बिजनेसेस हैं, बेस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी इंडियन लिस्टेड कंपनीज को मिलती है। हम इस तरह से स्पेंडिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया से बहुत पैसा हिंदुस्तान में आने वाला है, और जितना पैसा हिंदुस्तान के अंदर आएगा उतना ज्यादा आपके पास स्पेंडिंग और सर्कुलेशन ऑफ मनी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो होने क्या वाला है आपको यकीन नहीं आएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। 1947-48 द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर पोस्ट इंडिपेंडेंस, मार्च 1948 जब हमारा साल खत्म हुआ, जून 1948 में आंकड़े आए, और आंकड़े ये कहते हैं कि द GDP ऑफ इंडिया वाज 270 करोड़, 2.70 लाख करोड़ वाज इंडिया GDP। This March 2024, India's GDP stands up to 300 lakh crores. We took 75 years to reach from 2.7 lakh crores to 300 lakh crores. IMF की वेबसाइट पे जाइएगा, IMF की वेबसाइट क्या कहती है? In next
in next 6 years, by the end of 2030, India will be the third largest economy in the world, ahead of Japan. और इंडिया की जीडीपी हो जाएगी 600 लाख करोड़ रुपए। क्या मतलब हुआ? 300 लाख करोड़ पहुंचने में कितने साल लगे? 75। और उसका दुगना कितने साल में? कंपाउंडिंग। इतना पैसा यहाँ बनेगा तो मार्केट भी आपको ऐसा ही बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस बात की चिंता मत कीजिएगा कि मार्केट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इंडिया में पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। चिंता इस बात की कीजिएगा कि आप सही फैसला कर रहे हैं, आपका पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। पर हमारे शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में बड़ी मजेदार बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। आपके अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि जब मार्केट को आप टाइम करना चाहते हैं, आप कोशिश करते हैं यार कि मुझे ये समझ में आ जाए कि मार्केट कब गिरेगा और कब बढ़ेगा तो मैं ज्यादा पैसे बना लूंगा। ऐसा बनना आता है कि नहीं आता? सबके बनना, दुनिया में जो भी इन्वेस्टर है सबके मन में ही आता है कि यार अभी मार्केट गिर रहा है, अभी मैं पैसा निकाल लेता हूं और जब मार्केट वापस बढ़ने लगेगा तो वापस पैसा डाल दूंगा। ऑन पेपर दिस इज द बेस्ट पॉलिसी, इन प्रैक्टिस दिस इज द वर्स्ट पॉलिसी। मैंने अपनी जिंदगी में किसी को ये काम करते नहीं देखा। आप ये कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? We will understand the psychology behind this and how to overcome this, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जरूरी है। देखिए बहुत ध्यान से आप समझिएगा संजीव जी, फिर मैं आपको एज ए वॉलंटियर आपसे मदद मांगूंगा। आप ए से के जेड तक मुझे सुना सकते हैं ना? ABCDEFGH सुना सकते हैं कि नहीं सुना सकते? सुना सकते हैं। तो 51 ईयर्स से तो मतलब आपको 45 ईयर्स हो गया होगा सीखे हुए ABCD को। हर अल्फाबेट को आप जानते हैं, हर अल्फाबेट को पहचानते हैं, ठीक है। अब आप मुझे 26 लेटर्स को आप जानते हैं, अल्फाबेट्स को आप जानते हैं, आपको ए से जेड तक नहीं सुनाना है, मुझे जेड से सुनाना है। सुना सकते हैं? नहीं सुना सकते ना? अच्छा, आप सभी लोग ABCD जानते हैं? अच्छा, यहाँ कोई है जिसके पेरेंट्स ने उनको ABCD ए से शुरू नहीं करके जेड से शुरू किया? कोई नहीं है ना? कितना अजीब सा बात है ना। अगर आप अपने बच्चे को ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी की जगह Z फॉर ज़ेब्रा, Y फॉर याक से सिखाएंगे तो नहीं सीखेगा क्या? तब भी सीखेगा। और अगर आप ऐसा सिखाएंगे तो लोग उसको स्टेज पे बुलाएंगे कि उल्टा बोल सकता है। आपने देखा ना, सर्टेन थिंग्स वी डू विदाउट रीजन। हम सभी लोग A से क्यों सिखाते हैं? कोई हम B से क्यों नहीं सिखाता? कोई हमें Z से क्यों नहीं सिखाता? हम ऐसे क्यों हैं? हम ऐसे इसलिए है कि हम जंगल में रहते थे और जंगल में हमने सरवाइव कैसे किया ये जानने की कोशिश की कि अब क्या होगा। गर्मी है तो फिर बरसात आएगी, फिर स्प्रिंग आएगा, फिर ऑटम आएगा, फिर सर्दी आएगी। ये सब आप पैटर्न्स क्या हैं? आप प्रकृति के राज को समझना चाहते हैं कि प्रकृति में कब क्या होता है। दिन के बाद रात होती है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद अब क्या होगा, एक के बाद क्या आएगा। हम पैटर्न सीखते हैं और जैसे हम पैटर्न सीख जाते हैं हमें वी आर एट पीस, हमें लगता है कि हमें सीक्रेट समझ में आ गया दुनिया का। एंड दिस इज कॉल्ड एफोफिनिक बिहेवियर, पैटर्न सीकिंग बिहेवियर। हमें बचपन से पैटर्न दिखाए जाते हैं और सिखाए जाते हैं। तो इसमें होता क्या, ध्यान से समझिएगा। जब मार्केट गिरता है ना तो आपका मन जानते हैं क्या कहेगा? अभी और गिरेगा, अभी और गिरेगा। और जब मार्केट बढ़ने लगता है तो आपको लगता है अब ये और बढ़ेगा। इसलिए आप कभी इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे कि अभी पैसा निकाल लेता हूं, जब मार्केट गिर जाएगा तो डाल दूंगा और बढ़ने लगेगा तो वापस मेरा पैसा बन जाएगा। क्योंकि मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगा आप उसी डायरेक्शन में सोचते, यू कैन नॉट डू इट। हमने ऐसा सीखा ही नहीं है। वी आर नॉट रैंडम क्रिएचर्स, वी आर पैटर्न सीकिंग क्रिएचर्स। हम रैंडमनेस में बिलीव नहीं करते हैं दोस्तों। और जब आप रैंडमनेस में बिलीव नहीं करते हैं तो आप मार्केट को टाइम भी नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ने मार्केट को टाइम किया है तो वो किस्मत से किया है, रेगुलरली कोई भी नहीं कर सकता है। सो व्हाट इज द सीक्रेट टू फेस दिस मार्केट? इसको बहुत सोचने के बाद एक सॉल्यूशन दिया गया है एंड दैट सॉल्यूशन इज एसेट एलोकेशन। व्हाट इज एसेट एलोकेशन? अब ये बड़ी मजेदार बात है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। आपके पास एक दिन पैसा आता है, चाहे मान लीजिए कि एक दिन जाएगा भी, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए पैसा आपसे वापस जाएगा। तो आपको डिसाइड क्या करना है? आपको युधिष्ठिर बनना है। युधिष्ठिर हमें क्या सिखाते हैं? युधिष्ठिर सिखाते हैं कि जो चीज आती है वो चीज जाती है। 5 भाई अपने 100 भाइयों को मारते हैं क्योंकि उनको वो जमीन चाहिए। वो जमीन को क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने भाइयों को मारा।
जिन भाइयों को मार के आपने जमीन ली ना, उस जमीन को भी 35 साल राज करने के बाद युधिष्ठिर अपने हाथों से किसी को देता है और जंगल में जाता है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि जो कुछ आपने सेव किया है एक दिन खर्च होना है। द एंड ऑफ एवरी मनी इज स्पेंडिंग। आप नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ स्पेंड हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? इन्वेस्टिंग इज व्हाट? इन्वेस्टिंग इज नॉट सेविंग फ्रेंड, इज नॉट इन्वेस्टिंग, इज नॉट मैनेजमेंट ऑफ सेविंग्स। ध्यान से समझिएगा, एसेट एलोकेशन की आपको ताकत समझ में आएगी और इन्वेस्टिंग का वो सीक्रेट समझ में आएगा कि व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टिंग इज नॉट मैनेजमेंट ऑफ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, इज मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वन डे गेट स्पेंट। आप बचा कुछ नहीं सकते, बचा ही नहीं सकते। गॉड डजंट लाइक देम जो पैसा बचाते हैं। जो पैसा बचाते हैं गॉड उनको एक सजा देते हैं। सजा क्या है? मरने के बाद उनको ऊपर आसमान से नीचे देखने के लिए कहते हैं देखो तुम्हारे पैसे को दूसरा कैसे खर्च कर रहा है। कैसा लगेगा आपको? जो आपने कमाया उसको दूसरा खर्च कर रहा है। पर हम सब यही कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको करना क्या है? ध्यान से समझिएगा। मैं जानता हूं आप ये काम नहीं करेंगे, फिर भी मैं कह रहा हूं आप कीजिएगा। और मैं आपको बताऊं आप ये काम क्यों नहीं करेंगे। सुनिएगा आप ये काम क्यों नहीं करेंगे। आप टीवी देख रहे हैं, प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा, क्या करेंगे? चैनल चेंज करेंगे। अच्छा, चैनल चेंज क्यों करेंगे? क्योंकि प्रोग्राम अच्छा नहीं लग रहा है। मैडम ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, रिमोट आपको नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे? वही देखते रहेंगे। देखिए, रिमोट नहीं मिलने पर जो उठकर जाकर चैनल चेंज नहीं कर सकता है वो काम करेगा जो मैं कहने जा रहा हूं। इसलिए आपको टिप्स अच्छी लगती है कि दूसरा होमवर्क करे और मुझे बता दे कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा शेयर अच्छा है। मैंने कहा ना हमारे दो प्रॉब्लम है, लेजी है, डिसऑनेस्टी। क्या करना है आपको? जो आपने पैसा बचाया है ना, पूरे फैमिली के साथ बैठिए, क्योंकि आप स्पेंडिंग पूरी फैमिली करती है, आप अकेले नहीं करते। सिट विद एंटायर फैमिली, टेक अ पीस ऑफ पेपर और उस पर लिखिए कितना सेव किया है और उसके सामने लिखिए आपने क्यों सेव किया है, पर्पस क्या है। मेरी माँ की एक आदत थी, अब मेरी माँ दुनिया में नहीं है, मैं जो कहने जा रहा हूँ उनको बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ। अभी दिवाली गई है, हर दिवाली में हम घर की सफाई करते थे और जंक बाहर निकाल देते थे। हम बड़ी खुशी होती थी कि इतना जंक घर से बाहर जा रहा है। जब पूरा घर साफ हो जाता था, माँ उस जंक को ध्यान से देखती थी, उसमें से केवल 10% कबाड़ी को देती थी, 90% हमें बोलती थी वापस स्टोर में रखो। हम पूछते थे माँ स्टोर में क्यों रखना है, तो माँ एक बड़ा ही लॉजिकल आंसर देती थी, उसकी तरफ देखते हुए, कभी काम आएगा। पर वो कभी काम नहीं आया। मेरी माँ ने आधा होमवर्क किया, कभी काम आएगा। हम लोग पैसे के साथ भी ऐसा ही करते हैं, हम सेव करते हैं, तय नहीं करते हैं कि कब काम आएगा, और वो पैसा कभी काम नहीं आता है। So what is the first thing you have to do in investing is, जो पैसा आपने बचाया है उसके सामने एक काम करना है कि ये पैसा खर्च कब करूंगा। अगर आपने ये काम कर दिया ना, आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सेफ हो जाएगा। दुनिया में सेफ्टी नहीं है। हेलन केलर एक बड़ी मजेदार बात कहती है, बहुत ही मजेदार बात कहती है। जब मैंने इनके बारे में ये पढ़ा, मुझे लगा इनसे अच्छा समझाने वाला व्यक्ति दुनिया में नहीं है। हेलन केलर के बारे में आप जानते हैं? When she was a kid of 2 years, she lost all 3 things. ना देख सकती थी, ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी। सोचिए आपके पास एक 2 साल का बच्चा है जो ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है। उसको आप ABCD अल्फाबेट सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते। आप बोलेंगे बेटा बोलो ये, वो बोलेगा नहीं। आप बोलेंगे देखो बेटा ये, वो देख नहीं सकता। आप कहेंगे बेटा सुनो ये, वो सुन नहीं सकता। तो उसको भी एक टीचर मिलता है जो उसको हेलन केलर बनाता है। हेलन केलर एक मजेदार बात कहती है, इफ यू वांट सेफ्टी इन योर लाइफ, if you want security in your life, like an investment, this is not wrong. मेरी लाइफ सेफ हो, मेरा पैसा सेफ हो, ये सोचना गलत नहीं है। तो गलत क्या है? वो कहती है गलत ये है कि it is not there in प्रकृति, it's not there in nature. नेचर में कुछ भी सेफ नहीं है। अब आप सेफ रहना चाहते हैं तो आपको सेफ्टी खुद ही क्रिएट करनी होगी। तो आपका पोर्टफोलियो, कोई इन्वेस्टमेंट दुनिया में सेफ नहीं है दोस्तों, उसको आप ही को सेफ बनाना है। आप सेफ कैसे बनाएंगे उसको? आप सेफ बनाने का एक सिंपल तरीका है कि जो मैंने पैसा बचाया है इसको खर्च कब करना है। आशीष भाई साहब जब भी बात करें उनको ये मत कहिए कि ये पैसा मुझे इन्वेस्ट करना है, उनसे कहिए कि पैसा मुझे कब वापस चाहिए। जितने ईमानदारी से आप ये जवाब देंगे उतना अच्छा वो आपको पोर्टफोलियो बनाएंगे।
अब आप परिवार के साथ बैठे हैं, 100 रुपये आपने बचाया है, किसी ने आपको बोला कि मुझे ये पैसा 3 महीने के बाद 5 रुपये चाहिए, वो 5 रुपये म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड्स के अलावा कहीं नहीं जाने चाहिए। दैट्स द ओनली प्लेस यू शुड इन्वेस्ट, और कहीं वो इन्वेस्ट मत कीजिए। कोई बोलेगा मुझे 10 रुपये 1 साल के बाद चाहिए, लेट इट गो टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स, मीडियम टर्म बॉन्ड फंड्स। ये पैसा मुझे 3 साल के लिए चाहिए, बॉन्ड फंड्स। ये पैसा मुझे 5 साल के बाद खर्च करना है, हाइब्रिड फंड्स, डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स। ये पैसा मुझे 7, 8, 9 साल के बाद में खर्च करना है, इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स। ये पैसा मुझे 15, 20 साल के बाद खर्च करना है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स। खत्म, कागज पे लिख दिया आपने। अब बाजार के अंदर 20% भी फॉल हो गया ना, तब भी आपको रात को नींद आएगी। आप जानते हैं नींद क्यों आएगी? क्योंकि आपने वो पैसा डाला है जो आपको अभी जरूरत नहीं है, कागज पे लिखा हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे और आपको नींद आ जाएगी। मैं बहुत मजेदार बात आपसे कहने जा रहा हूँ, इस चीज को आप समझिएगा। मेरी शादी हुई तब मुझे बात समझ में आई। मेरी शादी 8 तारीख को हो रही है, छोटा घर है, पंडित जी आ गए। पंडित जी 2 दिन पहले आ गए, और 6 तारीख को पंडित जी ने हवन का जगह बना दिया कि आज हवन होगा। मैंने कहा साहब आज कौन सा हवन होगा, शादी तो 2 दिन के बाद है, 8 तारीख को, कि आज बड़ा हवन है, शादी से भी बड़ा हवन है। कि क्या हवन है? बोलते हैं आज शांति मंत्र का पाठ होगा, शांति यज्ञ होगा, गृह शांति यज्ञ होगा। मैंने पूछा साहब ये क्यों जरूरी है? तो शास्त्र कहते हैं, कहते हैं शास्त्र ये कहता है कि जब शादी का मतलब होता है पाणी ग्रहण, 2 व्यक्ति का मिलन होता है, 2 परिवारों का मिलन होता है। जरूरी नहीं है कि आप वृद्धि करेंगे, वृद्धि आप तब करेंगे जब आपके विचार मिलेंगे। तो हमारे स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं? हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि आप तब तक समृद्ध नहीं होंगे, प्रॉस्पेरिटी तब तक नहीं आएगी जब तक मन में पीस नहीं होगा। फर्स्ट पीस देन प्रॉस्पेरिटी। तो हमारे यहाँ हम कुछ भी काम करते हैं पहले शांति मंत्र से काम शुरू करते हैं, जिसमें हम हर चीज को शांत रहने के लिए बोलते हैं। प्रकृति को शांत रहने के लिए कहते हैं, आकाश को शांत रहने के लिए कहते हैं, धरती को शांत रहने के लिए कहते हैं, हमारे भूतकाल को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को शांत रहने के लिए कहते हैं। 3 बार ओम शांति ओम शांति ओम शांति बोलते हैं। बड़ी खूबसूरत तरीके से पंडित जी ने मुझे बताया, तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच में शांति रहेगी तभी तो बनेगी, और बनेगी तभी तो परिवार आगे चलेगा, और तभी तो परिवार सर्वाइव करेगा। What is long term? Long term is sum total of short term. 10 साल आप तब देखेंगे जब 1 साल देखेंगे, 1 साल आप तब देखेंगे जब हर महीना देखेंगे, हर महीना आप तब देखेंगे जब हर सप्ताह देखेंगे, हर सप्ताह तब देखेंगे जब हर दिन देखेंगे, हर दिन आप तब देखेंगे जब हर घंटा देखेंगे, हर घड़ी आप तब देखेंगे जब एक क्षण देखेंगे। एक क्षण जिंदा रहेंगे तभी तो 10 साल देखेंगे। Long term is sum total of short term, and every short term will challenge your peace. You have to peaceful every second. हर सेकंड आपको शांति रहनी है, और हर सेकंड जब आप शांत रहेंगे तब 10 साल में सर्वाइव करेंगे, और जब 10 साल सर्वाइव करेंगे तब कंपाउंडिंग होगी, तब जाके 50 करोड़ बनेंगे। तो शांति इतनी जरूरी है, और ये शांति तब तक नहीं आएगी जब तक आप सही एसेट एलोकेशन नहीं करेंगे। तो घर जाके थोड़ा चिंतन कीजिएगा क्या आपने सही एसेट एलोकेशन किया है। थोड़ा नेट पे पढ़िएगा भी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ एसेट एलोकेशन। जितने रिसर्च दुनिया में हुए हैं, जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स दुनिया में हुए हैं, ऐसा देखा गया है कि इन द एंड ऑफ देयर जर्नी 93% केसेस के अंदर उनकी सक्सेस इसीलिए मिली है कि उन्होंने राइट एसेट एलोकेशन किया है। बिकॉज विदाउट पीस देयर इज नो प्रॉस्पेरिटी। तो ये काम अगर आपने कर लिया, सही एसेट एलोकेशन अगर आपने कर लिया, तो इंडिया की इकोनॉमी आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। यू कैनॉट फील द वे इंडियाज इकोनॉमी इज प्रोग्रेसिंग। और इंडिया की इकोनॉमी की जो सबसे आखिरी बात और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आप ध्यान से समझिएगा। मैंने थोड़ा इशारा आपको इसकी तरफ किया है, और वो ये है कि किसी भी इकोनॉमी के जब आप चलते हैं तो उसमें खोना क्या है। आप देखिए वेस्ट की प्रॉब्लम क्या है। वेस्ट की प्रॉब्लम क्या है? वेस्ट के पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से ऑटोमेशन है उनके पास। ऑटोमेशन में मशीनें सारे काम आपको कर सकती हैं, पर मशीनें ट्रांजैक्शन नहीं करती हैं। जब आप एक लेबर से जूता बनवाते हैं तो आपको फायदा क्या होता है आप जानते हैं? लेबर आपको जूता बना के देता है, और जो जूता आपने बनाया उसको खरीद भी लेता है। मशीन आपको जूता बना के देती है लेकिन उसको खरीदती नहीं है। चीजें बनाना बड़ा काम नहीं है दोस्तों, चीजों का बिकना बड़ा काम है। तो खर्चा पहले आता है कि इनकम पहले आती है? सोचते हैं चलिए इस बात को। जिस दिन आप पैदा हुए थे अपने माँ बाप के लिए क्या लेके आए थे? खर्चा। तो आपकी जिंदगी में खर्चा पहले आया कि इनकम? इनकम हमेशा खर्चे के पीछे आती है। दुनिया में कोई भी नेशन, किसी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, कितना अच्छा इंटेलिजेंस हो, सब कुछ देश के पास हो, अगर खर्चा करने की ताकत नहीं है तो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। और खर्चा करने को आप तभी बढ़ाते हैं जब घर में बच्चा पैदा होता है।
तो यहाँ पर भी देखिए हमारे स्क्रिप्चर्स कितने शानदार हैं। आप सोचेंगे मैं बार बार स्क्रिप्चर्स की बात क्यों करता हूँ, सुनिए इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि जब तक अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं आए थे, दुनिया में सबसे अमीर देश कौन सा था आप जानते हैं? इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर स्क्रिप्चर्स में इकोनॉमिक्स है, हमारे शास्त्रों में इकोनॉमिक्स है। हमारे शास्त्रों में एक विधान है कि आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष आप तब प्राप्त करते हैं जब अच्छे कर्म करते हैं। हम सभी लोग मोक्ष चाहते हैं, लेकिन हमारा शास्त्र एक मजेदार बात लिखता है। आप जानते क्या लिखता है? वो लिखता है कि अच्छे काम करने पर भी मोक्ष नहीं मिलेगा अगर आपने एक गलती की तो। और वो गलती क्या है? कि आपका दाह संस्कार आपके बच्चे ने नहीं किया तो हमारे नियोग की व्यवस्था थी, हमारे यहाँ दत्तक पुत्र की व्यवस्था थी। हम गोद लेते थे, जिसके बच्चे नहीं होते थे वो गोद लेते थे ताकि उनको दाह संस्कार बच्चा करे तभी मोक्ष मिलेगा। और ये शास्त्रों में विधान क्यों है? क्योंकि आप दुनिया छोड़ेंगे तो बच्चे को छोड़ के जाएंगे, तभी तो खर्चे होंगे और तभी तो दुनिया चलेगी। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। तो हर देश में जो डीग्रोथ हो रही है, जापान 30 सालों से ग्रो नहीं किया है क्योंकि 30 सालों से सोसाइटी डिक्लाइन कर रही है। हर साल जापान के अंदर उनकी आबादी कम हो रही है। हर महीने 12,000 से उनकी आबादी कम हो रही है। जब आपकी आबादी कम होती है तो समाज में एजेड लोगों की संख्या बढ़ती जाती है और एजेड खर्चा नहीं करते हैं, वो बचे हुए पैसे को ही इस्तेमाल करते हैं। तो यू आर फॉर्चुनेट, आप ऐसे दौर को देख रहे हैं इंडिया में जिसको अमृतकाल कहते हैं। अमृतकाल मतलब उस काल में जब सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होती है। नेक्स्ट 20 ईयर्स आर सुपर ईयर्स फॉर इंडिया। लेकिन जो प्रॉब्लम दुनिया में है वो इंडिया में भी आएगी। इंडिया में क्यों आएगी? क्योंकि इंडिया में कमाने के बहुत मौके मिल रहे हैं। जब कमाने के मौके मिलते हैं तो बच्चे आपको अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि आपसे समय मांगते हैं। तो इंडिया का TFR भी कम होते जा रहा है। इंडिया का टोटल फर्टिलिटी 2 हो गया है। उन 2050 आते आते ये 2 से कम होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2050 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन में गिरना शुरू हो जाएगा। अगले 30 साल आपके पास में है पैसा बनाने के लिए। पैसा आसानी से बनता है, इसमें सिर्फ कंपाउंडिंग की जरूरत है। म्यूचुअल फंड आपको कभी निराश नहीं करेंगे। जिस तरह से आपको सिर्फ ये कहना है अपने एडवाइजर को कि आप अपने पैसे से चाहते क्या हैं और आपके पास वक्त कितना है। म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में डायरेक्ट स्टॉक से कहीं ज्यादा रिटर्न आपको बना के देता है। मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूँ डायरेक्ट स्टॉक में ज्यादा पैसा नहीं बनता। ऐसा लगता है कि डायरेक्ट स्टॉक में ज्यादा पैसा बनता है, पर वहां नहीं बनता है दोस्तों, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। आप किसी भी इन्वेस्टर को देख लीजिए, 15-20 साल के बाद आप मुड़ के देखेंगे जो रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड दे सकते हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग आपको नहीं दे सकती है। और आखिर में इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप जानते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि आप स्वयं के इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। इसलिए एडवाइजर का होना बहुत ज़रूरी है। अर्जुन युद्ध इसलिए नहीं जीते थे कि वो अच्छे योद्धा थे, अर्जुन युद्ध इसलिए जीते थे कि उनके पास एडवाइजर था। कर्ण अच्छा योद्धा था इसलिए हार गया कि उसके पास एडवाइजर नहीं था। और वेद व्यास बहुत स्मार्ट थे, वो चाहते थे कि महाभारत जैसी कहानी लिखी जाए, तो उन्होंने स्मार्टनेस क्या दिखाई आप जानते हैं। पूरी महाभारत में कृष्ण पांडवों के साथ हैं, लेकिन जब युधिष्ठिर जुआ खेल रहे हैं उस वक्त कृष्ण द्वारका गए हुए हैं। क्यों द्वारका भेज दिया? क्योंकि अगर कृष्ण तब होते तो क्या द्रौपदी को दांव पे लगाने देते? महाभारत ही नहीं होती। तो एडवाइजर क्यों जरूरी है? क्योंकि वो आपको उन क्षणों में संभालता है जब आप कमजोर पड़ते हैं। इस 20 साल की यात्रा में कम से कम 20 बार ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको बाजार से निकल जाना चाहिए, पर वहीं पर आप गलत हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि बाजार बढ़ेगा, पर कोई भी बाजार गिरने पर हमें परेशानी होती है कि नहीं होती है? अगर आपको नहीं होती तो टीवी परेशानी कर देता है, सोशल मीडिया परेशानी कर देता है। अपनी बात खत्म कर रहा हूँ ये कहते हुए, डोंट वॉच टीवी ऑन अ डेली बेसिस, दे आर इंजूरियस टू योर वेल्थ। स्टॉप वॉचिंग टीवी। थैंक यू वेरी मच।